Good morning, students. In this lecture, we will discuss the differentiation of exponential and logarithmic function, NCERT exercise 5.4. So first of all, let us see what do you understand by exponential and logarithmic. So very basic, if I write 2 raised to the power 4, then it can be written as 2 into 2 into 2 into 2. That is 2 multiplied 4 times. So 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 2 raised to the power 4 is equals to 16. So where this 2 is generally known as base and this 4 is known as exponent. So this is exponential form. If we have to convert this exponential format, that is 2 raised to the power 4 is equals to 16 exponential to logarithmic, then this can be written as logarithmic of 16 on the base 2 will be equals to 4. One more example, if 5 raised to the power 2, then it will be equals to 25. So this is exponential form. If we have to convert in logarithmic, then it can be written as log 25 on the base 5 will be equals to 2. So in generalization, if a raised to the power b is equals to y, then log of y on the base a will be equals to b. So this is the exponential form and then this is the logarithmic form. In standard notation, y is equals to e raised to the power x, where e is less than 3 but greater than equals to 2 is known as exponential function, or we can say natural exponential. So now let us discuss some derivative of exponential and logarithmic function. So the question first is differentiate y is equals to e raised to the power x whole upon sin x. So that's very basic question. This given function is defined as the division of two functions. Numerator is exponential e raised to the power x and denominator is sin x. So we will use the quotient rule. So by quotient rule, dy by dx will be equals to denominator whole square, denominator into numerator derivative, that is dy dx of e power x minus e power x into dy dx of denominator. So this is the quotient rule. Quotient rule क्या होता है? डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डेनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इनटू डेनोमिनेटर्स डेरिवेटिव. सो dy by dx विल बी इक्वल्स टू sin x आपका एज इट इज है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस e की पावर x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x होल अपॉन sin square x. So this is the derivative of y with respect to x. Now second question, y is equals to e raised to the power sin inverse x, e raised to the power sin inverse of x. Okay, so here y is depend upon x. सो dy by dx बराबर e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? इधर देखिए, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x. तो यहाँ e की पावर में साइन इनवर्स x, तो मैं क्या लिखूंगा? e की पावर साइन इनवर्स x इनटू, अगर ये x होता तो x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता? 1, लेकिन ये तो साइन इनवर्स x है, तो मैं क्या करूंगा? d by dx निकालूंगा वापस साइन इनवर्स x का. So dy by dx is equals to e raised to the power sin inverse of x into sin inverse x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 upon under root 1 minus x square.
So finally answer is dy by dx is equals to 1 upon under root 1 minus x square into e raised to the power sin inverse x. So in this question two formula we used. Basically first was फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस के जस्ट सामने लिखना है कि dy dx ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x है, और दूसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ दैट इज dy dx ऑफ साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. So please note down. Question number third, y is equals to e raised to the power x cube. So first, what type of function is this? Exponential, e raised to the power x cube. जनरली e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है. यहाँ देखिए x की जगह क्या है, x क्यूब. तो सबसे पहले अपन कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे वो साइड में लिखेंगे. यहाँ पर देखो y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं बेटे, d बाई डी एक्स ऑफ y. ये नोटेशन है केवल, d अपॉन डी एक्स ऑफ y का मतलब y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव. आप देखिए इधर क्या लिखूंगा मैं, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर x, तो e की पावर x क्यूब को e क्यूब, इसको मैं x मानूंगा, लेकिन यह x क्यूब है तो e की पावर x का e की पावर x ही होता, तो एक बार तो एज लिख दिया. अब x क्यूब का वापस तो उसको क्या लिखेंगे, d बाई डी एस ऑफ x क्यूब. अब देखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज हुआ. एक तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियली होता है. दूसरा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n. अगर x की पावर कोई नंबर है, जैसे x की पावर 3 है, तो x की पावर n का n x की पावर n में, ये दोनों फॉर्मूले इसमें यूज हो रहे हैं. तो पहले e की पावर x क्यूब का e की पावर x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब. तो यहाँ पे e की पावर x क्यूब इंटू x क्यूब का डेरिवेटिव, देखिए n कितना है 3, तो 3 बाहर आएगा और यहाँ 3 में से 1 कम हो जाएगा, तो 3 x की पावर 3 माइनस 1. उसको मैं हम बाद में है ना अपन ऐसे इतनी छोटी टर्म नहीं लिखे, 3 माइनस 1 तो 2 होता है, तो डायरेक्ट लिख देंगे अपन. तो e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर. सो दिस इज डेरिवेटिव dy बाई dx. dy बाई dx का मतलब ऐसा नहीं कि dy को dx से डिवाइड करें, ये नोटेशन है सिंपल. d बाई dx ऑफ y मतलब y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव. दिस इज योर आंसर. सो क्वेश्चन नंबर 4. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. 4th है y इज इक्वल टू साइन टेन इनवर्स y बराबर साइन टेन इनवर्स ऑफ e की पावर x. e की पावर x. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. e की पावर माइनस x, y साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस. सबसे पहले देखो साइन फंक्शन है, फिर टेन इनवर्स है, और फिर e की पावर माइनस है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अपन इधर से थोड़ा सा मिटा देते हैं और इधर सोल्व करने का प्रयास करते हैं. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. देखिए कैसे करेंगे. y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ e रेज़्ड टू द पावर माइनस x. देखो ये फंक्शन पावर फंक्शन भी हो सकता है. साइन की पावर अगर पहले तो पावर के रेस्पेक्ट करेंगे डेरिवेटिव, फिर साइन के रेस्पेक्ट, साइन के बाद टेन के रेस्पेक्ट, उसके बाद e की पावर माइनस x के. कौन कौन से फॉर्मूले यूज आ रहे हैं. सबसे पहले जो फॉर्मूले इसमें यूज आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले देखो साइन x का डेरिवेटिव, ये साइन के लिए ये पूरा x है. साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका cos x. इधर साइड में फॉर्मूले लिख ले कौन कौन से इस क्वेश्चन में. क्वेश्चन बहुत छोटा सा है बट साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x. तो सबसे पहले लिखा अपन ने dy बाई डी एक्स बराबर साइन के रेस्पेक्ट. साइन के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, cos.
तो cos ऑफ tan इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस x, देखो साइन के रेस्पेक्ट cos हो गया। फिर tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स का इंटू 1/1 प्लस tan इनवर्स का, tan इनवर्स x का, ये x है तो ये जो भी है उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस x। So finally it will be equals to cos of tan inverse of e raised to the power minus x into 1/1 plus e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर into e raised to the power minus x of -1, तो ये आ जाएगा माइनस बाहर। So this is dy by dt। आप देखिए क्या क्या यूज हुआ, पहले sin x का डेरिवेटिव cos x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देन चौथा फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x का e की पावर x। देन नेक्स्ट क्या यूज हो रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ, देन यूज हुआ d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5, y is equals to log of cos e की पावर x। देखो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन, सो फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x ऑन द बेस e, log x ऑन द बेस e का डेरिवेटिव होता है 1/x। ओके तो log के रेस्पेक्ट, log के बाद जो भी है ये पूरा x मानेंगे, log के बाद जो भी है x, लेकिन लिखेंगे वो का वही, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log x होता है तो 1/x, तो d बाई dx क्या होगा बेटे 1/cos e की पावर x इंटू cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो sin e की पावर x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और x का 1। तो पहला फॉर्मूला तो आपका कौन सा यूज हुआ, d बाई डी एक्स और log x बराबर 1/x। फिर दूसरा फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका d बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है डेरिवेटिव माइनस ऑफ sin x, एंड देन थर्ड एक्सपोनेंशियल d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। सो एक बार फिर से देखिए, log के रेस्पेक्ट जो भी आगे वो 1/, में तो 1/cos e की पावर x, फिर log के बाद किसका करूंगा मैं, cos का, cos का क्या होता है माइनस साइन x होता है, x की जगह e की पावर x है, e की पावर x इंटू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, और x का x के रेस्पेक्ट हमेशा 1 होता है। x का x के रेस्पेक्ट 1 क्यों होता है, देखो d बाई डी एक्स ऑफ x, x मतलब उसकी पावर कितनी है 1, n 1 है, n बाहर आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स की पावर 0। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इसलिए ध्यान रखना x का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Sixth question, question number 6, y is equals to e raised to the power x plus e raised to the power x square plus and so on plus of e raised to the power x power 5. So how we will derive this? देखिए पहले एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन एंड सो ऑन, पावर 1 से लेकर 5 तक मीन्स 5 फंक्शन एडिटिव फॉर्म में है। सो सबसे पहले ऑपरेटर जब भी एक से अधिक फंक्शन एडिटिव और सब्सट्रैक्टिव में हो
तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। ओके, हर फंक्शन पर अपन ने क्या कर दिया, ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑपरेट कर दिया, मतलब इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव, इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट, इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट, इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट और इसका भी एक्स के रेस्पेक्ट। ऐसा कब करते हैं, जब यहाँ प्लस या माइनस होता। आप देखिए डी बाई डी एक्स हो वही तो आपका डी वाई बाई डी एक्स हो गया, सिंपल। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, एक्स का 1 तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर का, ई की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या होगा इंटू 2x प्लस ई की पावर एक्स क्यूब का, ई की पावर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स की पावर 4 का, ई की पावर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस ई की पावर एक्स की पावर 5 का, ई की पावर एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 का 5x की पावर 4। So this is the derivative of y with respect to x. किसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव निकाला अपन ने, y का x के रेस्पेक्ट। So please pause the video and note down. Question number 7, y is equals to the root of e raised to the power root x, where x is greater than 0. Because if x is less than 0, then it will not define. That's why, क्योंकि root x नेगेटिव होने पर कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। So सबसे पहले which format we will use, d by dx of root of x। root x का डेरिवेटिव होता 1/2 root x। हमेशा याद रखिए रूट ऑफ एनी क्वांटिटी का 1/2 इंटू रूट ऑफ दैट क्वांटिटी, और अगर क्वांटिटी फिर से अगर किसी का फंक्शन है तो फिर से डेरिवेटिव होगा, लेकिन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर फिर रूट एक्स का, तो 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। सो दिस इज द डेरिवेटिव dy by dx, y का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव। देखिए क्या क्या यूज आया, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है। So please pause the video and note down. Question number 8. Y is equals to log of log x, where x greater than equals to 1. Because log 1 0 होता है, इसलिए यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 दिया। देखो y के रेस्पेक्ट, y का x के रेस्पेक्ट dy by dy। फर्स्ट log के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होगा, log x का होता है 1/x, तो 1/log of x इंटू log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x और x का 1, सो फाइनली आंसर आया 1/x log x, that is dy by dx. Okay, so first question. Then next 9th, y is equals to cos x upon log of x। दो फंक्शन है, बहुत सिंपल, न्यूमरेटर कोसाइन फंक्शन है और डिनोमिनेटर लॉगरिथमिक फंक्शन है, लेकिन दोनों डिवीजन फॉर्म में है।
सो बाई यूजिंग क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है? देखो, अगर y बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इम्प्लाइज दैट y1 किसके बराबर होगा? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। दिस इज द क्वोशिएंट रूल। सो dy बाई dx किसके बराबर होगा बेटे? देखो, डिनोमिनेटर तो क्या है? log x का होल स्क्वायर, सो log ऑफ x इंटू cos x का क्या होगा? माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ cos x इंटू log x का 1 अपॉन x। दिस इज द derivative. So question number 9, pause the video and note down. Last question number 10. Question number 10 is y is equals to, the given question is y is equals to cos of log of x plus e raised to the power x. So first we will differentiate the given function with respect to x, and the first function is cos x. So dy by dx, cos x का क्या होता है? माइनस ऑफ साइन log of x plus e raised to the power x. तो cos x का होता है माइनस साइन x into d by dx of log x plus e raised to the power x. So dy by dx will be equals to minus of sine log of x plus e power x into log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x plus e की पावर x का e की पावर x. So finally answer is 1 upon x plus e raised to the power x into minus of sine log x plus e raised to the power x. So this is the derivative. So पहले हमने cos के रेस्पेक्ट किया तो माइनस साइन ऑफ, फिर एंटायर फंक्शन लॉगरिथमिक प्लस एक्सपोनेंशियल एडिटिव फॉर्म में, तो एक बार मैं log x का डेरिवेटिव करूंगा प्लस एक्सपोनेंशियल का। log x का 1 अपॉन x होता है, e की पावर x का e की पावर, तो इसको अपन ने फर्स्ट लिख दिया माइनस साइन log x प्लस e की पावर x। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। So this was about the logarithmic and exponential functions derivative. Now next topic is derivative of logarithmic function. Absolutely logarithmic functions derivative. So article NCERT 5.5 logarithmic functions derivative और logarithmic differentiation, logarithmic differentiation. So the most important thing is that how we will recognize in the exam that which type function will be differentiate using logarithmic. So if the given function is function on function, for example, let us suppose y barabar x power x, then this function is function on function. What is this? Function on function on function. तो अगर किसी एक फंक्शन की पावर अगर दूसरा फंक्शन है तो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज लेंगे। सो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? अगर फंक्शन ऑन फंक्शन दे रखा है तो सबसे पहली स्टेप में अपन वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, तो लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ x रेज़ टू द पावर x। आप देखिए log a रेज़ टू द पावर n होता है n log of a। ओके, दिस इज द लॉगरिथमिक रूल, log of
a raised to the power n is n जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, a logarithmic of a. So using here log of y बराबर this x will be out, so x into log of x. आप देखिए ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में होगी, ये फर्स्ट है और ये आपका सेकंड. नाउ यूजिंग प्रोडक्ट रूल, सो log y का डेरिवेटिव होगा 1/y और y का dy by dx इज इक्वल टू x एज इट इज रखा, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1. इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस log x. So dy by dx will be equals to 1 plus log x into of y. 1/y को राइट में ट्रांसफर करेंगे, वापस y x पावर x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x पावर x into 1 plus log x. So this is your derivative of x की पावर x. x की पावर x into 1 plus log x. आप देखिए इस वाले को भी देखो, कभी कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x की जगह आंसर कुछ डिफरेंट भी देता है. कैसे उसको देखिए, dy by dx क्या लिखेंगे अपन, x की पावर x तो एज इट इज 1 को लिख सकते हैं अपन log of e ऑन द बेस e. नेचुरल लॉगरिथमिक ऑन द बेस सेम बेस पर वैल्यू 1 होती है, तो log e ऑन द बेस e प्लस log of x ऑन द बेस e. बिकॉज ये नेचुरल लॉगरिथमिक है, log x ऑन द बेस ऑलरेडी है. सो देखो यहां पर एक और कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है, log a प्लस log b होता है log ab. तो इसको लिख सकता हूं मैं x की पावर x इंटू log ऑफ a इज e एंड b इज x, तो log ex ऑन द बेस e. सो ये दूसरा आंसर है जो जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर x यूजिंग लॉगरिथमिक, x की पावर x into log ex on the base e और x की पावर x into 1 plus log x on the base e. So this is the derivative of y with respect to x. So hope you like this video. In next video we will do the exercise 5.5. Thank you all of you.